ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلا نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وقف ترمیمی بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی میعاد میں توسیع کا مطالبہ۔ اپوزیشن ارکان نے صدر نشین کے رویے پر اٹھائے سوال۔ قواعد کی خلاف ورزی کا بیرسٹر اویسی نے لگایا الزام۔ اسمبلی میں اپوزیشن تعمیری رول ادا کریں، کام کرنے والے وزراء موجود۔ بی آر ایس کی طرح محلوں میں رہنے والا کوئی نہیں۔ بھٹی وکرمارکا کی میڈیا سے غیر رسمی بات چیت۔ 30 نومبر سے 7 دسمبر تک ریاست بھر میں بی آر ایس کا گروکل باٹا پروگرام۔ کلکٹر کا استعمال کر کے سیاست کی جا رہی ہے، کے ٹی آر کا الزام۔ دوسری کمپنیوں کی ادویات کو اپنا لیبل لگا کر فروخت کرنے کا پردہ فاش۔ سدی پیٹ میں فارما کمپنی پر ڈرگ کنٹرول کا دھاوا، 1 کروڑ 63 لاکھ کی عطیات ضبط۔ جے ڈی میٹلا فیکٹری میں لگی آگ ابھی بھی بے قابو۔ منیکنڈا میں اپارٹمنٹ کی 9ویں منزل پر لگی آگ۔ رامتا پور میں اسکوٹر کی بیٹری سے دھماکہ، مکان اور 2 ویلرز کو نقصان۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل۔ 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹوری چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی، ٹولی چوکی۔ ایمسن ڈائمنڈ ہلز کالونی، ٹولی چوکی۔ ایزل ریزیڈینسی، ایس اے کالونی، ٹولی چوکی۔ سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی، ٹولی چوکی۔ دارالامن ہیپی ہومز کالونی، الکاپور، دارالخیر، سوریہ نگر کالونی، ٹولی چوکی۔ ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو، ٹولی چوکی۔ اکبر انکلیو، گولڈن سینڈ کالونی، ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ اسکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ۔ گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وقف ترمیمی بل سے متعلق تشکیل دی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے صدرنشین نے اپنی رپورٹ 29 نومبر کو پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صدرنشین کے اس فیصلے پر کمیٹی میں شامل ارکان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کمیٹی کے اپوزیشن ارکان نے 4 شنبے کو اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ انہوں نے جے پی سی کی میعاد میں توسیع کا مطالبہ کیا۔
मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 29 नवंबर को कैसे रिपोर्ट पेश की जा सकती है। उनका कहना था कि स्पीकर की तरफ से जो कवायद वज़े किए गए थे उसकी पाबंदी करनी चाहिए। रिपोर्ट का हिंदी तर्जुमा होना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कमेटी के मुख्तलिफ कवायद का हवाला देते हुए कहा कि कमेटी ने मगरबी बंगाल और बिहार का दौरा भी नहीं किया है। कमेटी को दूसरे फरीकैन से भी मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। जराये के मुताबिक अपोजिशन के दबाव पर कमेटी की मियाद में तोसी की सिफारिश की जा सकती है। Please understand that the mandate is that the report should be given on the 29th. Yes, sir. First week, last day. Yes, sir. Now, how can you give it? There is a procedure that has to be followed. There is a procedure laid down by the rules and by the direction speaker. First, the committee has to give a notice that there will be a clause by clause consideration. That notice has not been given. Secondly, listing of amendments and circulation of list of members they give, that has not been given. Second. Third, under direction 77, there has to be a clause by clause consideration. That takes at least 2 days. Fourth, based on the clause by clause consideration, draft report has to be finalized and shared with legislative department, then Ministry of Law and Justice. Hindi translation of that report should come. We don't know. Draft report with amendment bill, as prepared by the Legislative Council, by the chairman, should be approved. Then it should be circulated to members. Then the draft, direction 78 speaker, draft report and the bill as amended will be considered by the committee. After that, whether the report is adopted or not, the chairperson will give members the right to give dissent report, direction 85, rule 303. And after examination of dissent note by the secretary, direction 91, the preparation regarding present final report of the House. All these steps have not been taken. And most important, this committee has not visited state of Bihar. This committee has not gone to West Bengal. Jammu Kashmir. This joint working committee, the chairman assured us that a minister from Delhi government will call. That has not been called. There are many stakeholders which want to come. In fact, I am telling you, from Kashmir, Mir Wais Umar Farooq wants to come. Now, will that not send a strong message to the whole country that from Kashmir, Mir Wais wants to come? Why are you not allowing this committee? Why isn't the government allowing this committee to meet every stakeholder? नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी के ग्राफ में इजाफा हुआ है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रैतू भरोसा के बारे में हुकूमत तरीक़ेकार पर काम कर रही है और इस बात का किसानों को भरोसा है। चंद दिनों से केटीआर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। भट्टी ने कहा कि समाजी अकामती स्कूल्स के वाक़े पर हुकूमत संजीदा है। उनका कहना था कि असाइन अराजियात की तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। झारखंड की कामयाबी अवाम की कामयाबी है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कांग्रेस के वज़रा काम करने वाले वज़रा हैं, बीआरएस पार्टी की तरह महलों में रहकर काम करने वालों में नहीं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आइंदा असेंबली इजलास में अपोजिशन का रोल तामीरी होना चाहिए, दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी हुकूमत की ख्वाहिश है कि हुकूमत के साथ अपोजिशन भी रहे। साल 2023-24 बैच के तेलंगाना के आईपीएस ओहदेदारों से वजीर आला ने मुलाकात की। जुबली हिल्स में वाक़े वजीर आला की क़यामगाह पर वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से मुलाकात की। मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल हुआ है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत भर में क्रिसमस तकारीब मुनाकिद की जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में क्रिसमस सेलिब्रेशन कमेटी इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने कहा एलबी स्टेडियम में मुनक्किदा क्रिसमस तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी शिरकत करेंगे। इसके लिए तमाम इंतजामात की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस तकरीब में तमाम गिरजाघरों के पादरियों को भी मदऊ किया जाएगा। 95 असेंबली हल्कों और जीएचएमसी हुदूद में 200 इलाकों में क्रिसमस तकारीब मुनाकिद की जाएंगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा क्रिसमस तकारीब के इंतजामात के लिए जीएचएमसी के साथ साथ दीगर असेंबली हल्क़ाजात में इंतजामी कमेटियां तश्कील दी जाए। एलबी स्टेडियम में होने वाले प्रोग्राम की रियासती हुकूमत निगरानी करेगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि जारी माह की 30 तारीख से दिसंबर की 7 तारीख तक रियासत भर में बीआरएस गोकुल बाटा प्रोग्राम किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था गुरुकुल बाटा प्रोग्राम में अकामती स्कूल्स कोर्सेस, केजीबीपी मॉडल स्कूल्स,
सरकारी अकामती स्कूल्स और कॉलेजेस का जायजा लिया जाएगा। इस प्रोग्राम में अरकान मुकर्रना, अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। RS प्रवीण की निगरानी में 5 रुकनी कमेटी जायजा लेगी। कमेटी रिपोर्ट पार्टी को पेश करेगी। KTR ने कहा, कलेक्टर पार्टी कारकुनों की तरह काम कर रहे हैं। कलेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सियासत की जा रही है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। BRS का बाल भी बेका नहीं कर सकते। ये ड्रामा कब तक चलेगा? कितने दिन ये कलेक्टर ओहदेदार उनका ड्रामा चलाएंगे, हम भी देखेंगे। उनका कहना था कि जो भी कांग्रेस पार्टी के कारकुन की तरह काम कर रहे हैं, उनका हिसाब किताब किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली NVS प्रभाकर ने कांग्रेस की 1 साला हुकूमत पर खुले मुबाहिस का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस हुकूमत का तर्ज अमल और उनका फैसला देखने से ऐसा लगता है कि वो BRS पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही है। BRS पार्टी के जामे सर्वे की तरह कांग्रेस की जात पात की मरदमशुमारी है। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग में मुलजिमीन को जेल में डालने का वादा किया था, लेकिन अब तक किसी को भी जेल में नहीं डाला गया। कर्ज लाने में BRS पार्टी की तरह गामजन हो रही है। प्रभाकर ने कहा, पिछली हुकूमत के मूसा नदी के सफाई प्रोग्राम पर कांग्रेस अमल कर रही है। कांग्रेस हुकूमत में जुल्म व ज़्यादती और कत्ल व गारतगिरी में इजाफा हुआ। कांग्रेस हुकूमत सिर्फ वक्त गुजार रही है। कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की हुकूमत पर खुले मुबाहिस का उन्होंने चैलेंज किया। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने कहा कि KTR का इख्तिदार चला गया, लेकिन तकब्बुर में कमी नहीं आई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, KTR समझते हैं कि वो अभी इख्तिदार में हैं, इसलिए मनमानी गुफ्तगू की जा रही है। छोटे बड़े की तमीज के बगैर बात कर रहे हैं। सिलसिला कलेक्टर पर KCR ने जो बात की उसकी मजम्मत करते हैं। कलेक्टर को कांग्रेस का कारकुन कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। कलेक्टर पर तनकीद करने के बजाय उन्हें खौफजदा किया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से माफी मांगने का KTR से मुतालबा किया। BRS पार्टी के साबिक रुकन असेंबली P मधु ने कहा, कांग्रेस हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मंथनी असेंबली हलके में चिन्ना कालेश्वरम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद करके जेब भर ली गई। असेंबली हलके के अवाम को वजीर धोखा दे रहे हैं। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, इस प्रोजेक्ट के लिए 570 करोड़ हुकूमत दे रही है। चीना कालेश्वरम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखकर 2 माह का अरसा हो चुका। मंथनी से श्रीधर बाबू 5 बार अवाम को धोखा देकर कामयाब हुए। मेडिगड्डा प्रोजेक्ट नहीं होता तो एक फसल को भी पानी नहीं मिल सकता था। चीना कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर ओहदेदारों ने अब तक एक भी जायजा इजलास नहीं लिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मगनूर जिला परिषद स्कूल के तलबा के समियत ग़िज़ा से मुतासिर होने के वाक़े का सख्त नोट लेते हुए मुतालिका ओहदेदारों की सरजनिश की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, 1 हफ्ते में 3 बार तलबा समियत ग़िज़ा से मुतासिर हुए। क्या ओहदेदार सो रहे हैं? मुअज़्ज़ज़ अदालत का कहना था कि क्या बच्चों के मरने के बाद जवाब दाखिल किया जाएगा? यह मुतालिका ओहदेदारों की लापरवाही का सबूत है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत इस मामले को संजीदा नहीं ले रही है। इस सिलसिले में जब हुकूमत के वकील ने 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने की इजाजत तलब की, अदालत ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि ओहदेदारों से राब्ते के लिए क्या 1 हफ्ता दरकार होगा? क्या ओहदेदार अदालत के अहकाम मिलने के बाद काम करेंगे? मौजूद जज ने कहा कि अगर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है तो ओहदेदार 5 मिनट में अदालत में पेश हो जाएंगे। ओहदेदारों के भी बच्चे हैं, उनका रवैया इंसानी होना चाहिए। इस पर हुकूमत के वकील ने कहा कि वो दोपहर के बाद जवाब दाखिल करेंगे। अकामती स्कूल्स में मुबैना गैर मेयारी और नाक़िस ग़िज़ा की फराहमी और तलबा के समियत ग़िज़ा से मुतासिर होने के हालिया वाक़यात को लेकर BRS पार्टी की तरफ से 4 शंबे को संक्षेमा भवन के पास एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुन हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर BRS पार्टी के लीडर G श्रीनिवास यादव और दूसरों को गिरफ्तार किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 50 चेक्स की तस्सीम अमल में आई। दारुसलाम में रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराद ने दवाखानों में इलाज की बाबत चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के इस्तिफादा कुनदगान में चेक्स तकसीम किए। इसकी मालियत 22,70,000 रुपये बताई गई। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। जाफर हुसैन मेराद ने कहा कि अहम सरकारी दवाखानों जैसे निम्स, MNJ में इलाज के लिए LOC और खानगी दवाखानों में इलाज के अखराजात की बाज अदायगी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से अंजाम दी जा रही है।
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने उत्तर प्रदेश के संभल में जामे मस्जिद के सर्वे से पैदा सूरत हाल और 5 मुस्लिम नौजवानों के कत्ल वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम और दीगर जिम्मेदारों की तरफ से फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनरुद्दीन अहमद मुख्तार ने मीडिया के लिए प्रेस नोट जारी किया। फोरम ने इस वाक़े की बरसर खिदमत जज के जरिए तहक़ीक़ात कराने, खाती ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और वाक़े का अज़ खुद नोट लेते हुए कार्रवाई करने की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की है। अलियाबाद सब स्टेशन के मरम्मती कामों की वजह से अलियाबाद ज़ख़ीराब के तहत आने वाले मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात को पानी की सरबराही मसदूद रहेगी। वाटर वर्क्स के ज़राए के मुताबिक बादाम मस्जिद, बालागंज, महानकाली टेम्पल, लाल दरवाज़ा, मित्रा क्लब, छतरी नाका, गांधी का मुजस्समा, श्री राम नगर, पांडू रंगाराव स्ट्रीट, CIB क्वार्टर्स, हरिजन बस्ती, गौलीपुरा, मेकाला मंडी, सरदापेट, लक्ष्मी नगर, हमाम बौली, भोईकोड़ा, कंदिकल गेट, DK कॉलोनी, राजन्ना बौली और खादरी चमन में जुमेरात को पानी सरबराह नहीं होगा। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल की टीम ने जिले सिद्दीपेट में कराका पटला के बायोटेक पार्क में जुडास एक्सप्वाइम प्राइवेट लिमिटेड पर धावा करते हुए 1,63,00,000 रुपए के एंटीबायोटिक अद्वियात को जब्त किया है। ड्रग कंट्रोल हुक्काम के मुताबिक दूसरी फार्मा कंपनी की अद्वियात पर जुडास का लेबल लगाकर रूस भेजा जा रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह धावा किया गया। मुख्तलिफ अक़साम की भारी मकदार में एंटीबायोटिक अद्वियात को जब्त किया गया। इस सिलसिले में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निर्मल जिले में किसानों की तरफ से एथेनॉल प्लांट को लेकर किसानों का एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ है। गुज़िश्ता रोज निर्मल के RDO को दिलावरपुर मंडल के पास एहतजाजियों की तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें अपनी हिफाजत में वहां से मुंतकिल किया था। गुज़िश्ता रोज से ही निर्मल भैंसा कौमी शाहरा को एहतजाजियों की तरफ से ब्लॉक किया गया था। मुकामी एहतजाजियों ने सड़क पर पकवान किया था। रात देर गए तक एहतजाज जारी था और आज सुबह फिर दिलावरपुर के पास मुकामी गांव वाले जमा हो गए और एहतजाज करने लगे। पुलिस की गाड़ियों पर मुबैना संगबारी की गई। इस दौरान इत्तला मिली है कि मुतल्लिका कलेक्टर ने एथेनॉल प्लांट के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। हालिया अरसे में ऑनलाइन फ्रॉड आम हो चुका है। समाज में अपनी पहचान रखने वाली अहम शख्सियतों की तस्वीर के इस्तेमाल के जरिए ठगा जा रहा है। मसनूई जहानत का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। जामिया निज़ामिया से वाबस्ता मारूफ आलिम दीन मौलाना अनवार अहमद की तस्वीर लगाकर धोखेबाजों ने उनके हल्क़े अहबाब से बड़े पैमाने पर रक़ूमात वसूल की हैं। इसके लिए एक फ़ोन नंबर दिया गया। मौलाना ने उनकी तस्वीर बताकर ऑनलाइन रक़ूमात वसूल किए जाने की इत्तला पाकर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद पहुंचे और साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने अहबाब से अपील की कि वो ऑनलाइन फ्रॉड से खुद को महफूज रखें। एक ज़रूरी इत्तला देनी है। कोई साहब मेरा नाम और मेरी तस्वीर इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। ये एक फ़राड है। मैं अपने तमाम मुहिब्बीन से ख्वाहिश करता हूं कि उनकी बातों में मत आइए। इस फ़राडिये ने कई लोगों से पैसे वसूल भी कर लिए। जो लोग मेरी मोहब्बत में उसको पैसे डाले हैं, तो मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है। अभी मैं साइबर क्राइम में उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाया हूँ। ये उसका नंबर है 8583914917। मुमकिन है इस नंबर से आपको मैसेज आए या किसी और नंबर से भी मैसेज आ सकता है। हरगिज़ भी किसी को पैसे मत दीजिए और फ़राड का शिकार मत बनिए। बहुत से लोग बड़ी बड़ी रकम, कोई 30,000, कोई 20,000, कोई 25,000 इस तरह मुंतकिल कर चुके हैं और उस फ़राडिये का शिकार हो चुके हैं। दूसरे लोगों को मुत्तला करने के लिए और महफूज करने के लिए मैंने FIR भी करवा दी है और आप सबसे इस मैसेज के ज़रिए ख्वाहिश भी कर रहा हूँ कि महफूज रहिए, सेफ़ रहिए और ख़बरदार रहिए। अल्लाह हाफिज़। शहर के नवाही इलाके जेडी मेटला में मंगल को प्लास्टिक बैग तैयार करने की फैक्ट्री में लगी आग अभी तक भी काबू में नहीं आई थी। 24 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं। 40 फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। मंगल को दोपहर 12 बजे SSV फैब इंडस्ट्रीज के चौथे फ्लोर पर आग लगनी शुरू हुई थी। बैगों की तैयारी के लिखा गया रॉ मटेरियल जलकर खाकिस्तार हो गया। बरक़ी निज़ाम की खराबी आग लगने की पहले वजह बताई गई। जिस वक्त आग लगनी शुरू हुई उस वक्त फैक्ट्री में 60 लोग मौजूद थे। उन्हें बाहिफाजत नीचे लाया गया। बताया गया कि इस कंपनी में यौमिया 4 लाख बैग घरेलू और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए तैयार किए जाते हैं।
शुगर, गजाई अजनास, सीमेंट और खाद के लिए बैग्स तैयार किए जाते हैं। जेडीमेटला, कुकटपल्ली, सिकंदराबाद, चिल्लापल्ली, मादापुर और एलबीनगर से 10 फायर इंजन को तलब किया गया था। बताया गया कि आग बुझाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया। अभी तक जानी नुकसान को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। फैक्ट्री का एक हिस्सा भी मुनहद्दम हो गया है। रावंतपुर के विवेक नगर में स्कूटर की बैटरी फटने से आग लग गई। बताया जाता है कि आग इतनी शदीद थी कि घर में पार्क की हुई दूसरी टू व्हीलर्स भी आग की जद में आ गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड कमला मुकाम वाक़या पहुंचा, लेकिन जब तक टू व्हीलर्स खाकस्तर हो चुकी थी। पुलिस को भी तलब कर लिया गया। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। हाल ही में रियासत के एक और जिले में नई गाड़ी की बैटरी के फटने से मकान को शदीद नुकसान पहुंचा था। उधर मणिकुंडा इपल अपार्टमेंट में आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया जाता है कि अपार्टमेंट के 9वें फ्लोर पर आग लगते ही दूसरे फ्लैट के मकीनों को नीचे उतारा गया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। मुताल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सड़कों और फुटपाथ पर गैरमजाज ढांचों के खिलाफ ऑपरेशन रोप के तहत कार्रवाई जारी है। अंबरपेट में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डीसीपी अशोक कुमार और सुल्तान बाजार ट्रैफिक एसीपी संपत कुमार की निगरानी में गैरमजाज ढांचों को मुनद्दम किया गया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यह मुहिम चलाई जा रही है। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव की कार को टक्कर मारे जाने का सीसीटीवी मंजरेआम पर आया है। कांग्रेस लीडर ने पहले सिलसिले में शुबे का इजहार किया था कि उनकी कार को जानबूझकर नुकसान पहुंचा गया। बाद में सीसीटीवी में भी देखा गया कि वो दूसरी कार ने उनकी कार को टक्कर मारी और फिर वो रफ्तारी के साथ वहां से चला गया। मुताल्लिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के जिले कुमरमुहिम, आसिफाबाद और महाराष्ट्र के सरहदी वानखेड़ी मंडल में शेर के नजर आने से सनसनी देखी गई। रास्ते से गुजरने वालों ने शेर का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। शेर के नजर आने के साथ ही महकमा जंगलात को चौकस कर दिया गया है। हालिया चंद दिनों के दौरान निर्मल की शाहरा पर भी इसी ही शेर नजर आए थे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सेलफोन और बिना राइडिंग हेलमेट राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम जारी है। चारशंबे को आईएस सदन संतोष नगर चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुहिम चलाई गई। इस मौके पर बाइक सवारों को हेलमेट न पहनने से होने वाले नुकसानात और रॉन्ग साइड जाने से होने वाले खतरात से आगाह किया गया। प्ले कार्ड्स पर दर्ज करदा सलामती के नारे भी आवाम को दिखाए गए। टू व्हीलर सवारों को ट्रैफिक के कवायद की पाबंदी का मशवरा दिया गया। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन और बंजारा हिल्स पुलिस ने स्विगी डिलीवरी एजेंट को गिरफ्तार करते हुए 9 किलो गांजा जब्त किया है। बताया जाता है कि बंजारा हिल्स का साकिन संतोष कुमार हैदराबाद में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। ज्यादा आमदनी के लिए उसने गांजा सरबराह करना शुरू किया। पुलिस ने गांजा खरीदने वाले 7 अफराद को भी तहवील में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। कोकटपल्ली के हदूद में 22 नवंबर को कातिलाना हमले में जख्मी नौजवान इलाज के दौरान जान पर न हो सका। तफसीलात के मुताबिक वेंकटरमना पर पवन और उसके साथियों ने हथियारों के साथ हमला किया था। बताया गया कि वेंकटरमना मुबैना तौर पर पवन की बहन के साथ छेड़छाड़ किया करता था। इसी बात को लेकर पवन और वेंकटरमना के दरमियान बहस व तकरार हुई। दोनों ग्रुप आपस में मुतसादिम हुए। वेंकटरमना हमले में जख्मी हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी हैं। हुसैनी आलम जलाल कुचे से 28 साल लड़की रेशमा, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, 31 अक्टूबर को अपने घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। उन्हें रिश्तेदारों व दीगर मकामात पर तलाश किया गया। दिमागी हालत ठीक न होने पर उन्हें शास्त्रीपुर में वाक़े एक होम में शरीक करा गया था। उस होम से उन्हें घर ला गया। घर लाने के बाद वो बिना इतला देकर बाहर निकल गई। अगर किसी को नजर आ जाए तो हुसैन आलम पुलिस को या किसी करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला दे सकते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद।
क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मियाद में तोसी का मुतालबा। अपोजिशन अरकान ने सदर नशीन के रवैये पर उठाए सवाल। क़वायद की खिलाफ वर्जी का बैरिस्टर उवैसी ने लगाया इल्जाम। असम्बली में अपोजिशन तामीरी रोल अदा करें, काम करने वाले वज़रा मौजूद। बीआरएस की तरह महलों में रहने वाला कोई नहीं। भट्टी विक्रमार्का की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। तीस नवंबर से 7 दिसंबर तक रियासत भर में बीआरएस का गुरुकुल बाटा प्रोग्राम। कलेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सियासत की जा रही है, केटीआर का इल्जाम। दूसरी कंपनियों की अद्वियात को अपना लेबल लगाकर फरोख्त करने का पर्दाफाश। सिद्दीपेट में फार्मा कंपनी पर ड्रग कंट्रोल का धावा। 1 करोड़ 63 लाख की अद्वियात जब्त। जीडी मेटला फैक्ट्री में लगी आग अभी भी बेकाबू। मणिकुंडा में अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर लगी आग। रामंतपुर में स्कूटर की बैटरी से धमाका, मकान और 2 व्हीलर्स को नुकसान। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।